Today, our topic is leadership qualities developed through physical education. Leadership means the action of leading a group of peoples or organizations is called leadership. Qualities means a standard. Develop means to make visible through by way of means physical education. The development of an active and healthy lifestyle is called physical education. Progress in any field depends upon the quality of professional leadership available. Progress होता है going on in any field means area. Depends upon, decided by something, the quality, standard of a profession, the act of declaring that one has a particular feeling, able means able to used. When any leader is striving to promote his profession, striving means make great effort. जब कोई भी लीडर जो है वो भरपूर कोशिश करता है टू प्रमोट मीन एक्टिवली एनकरेज हिज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है, लीडरशिप मीन्स द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग दैट वन हैज ए पर्टिकुलर फीलिंग, ही इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट होता है एक्टिवली एनकरेज कर रहा है, डायरेक्टली होता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शंस, एंड इनडायरेक्टली मीन्स विदाउट हैविंग हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. Directly he is gaining statutory and social requisitions. Directly means without changing directions, he is gaining होता है obtains. Statutory means reputations को वो अपनी जो है वो गेन कर रहा है, and social requisitions means making them feel more involved. उसे लगता है कि अब वो सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है. And indirectly he gets gains. And indirectly means without having had direct experience, he gets gain, उसको फायदा हो रहा है of profession of the leadership में, through work, अपने काम के जरिए. Leadership is not a quality which can be bestowed upon any persons. लीडरशिप एक ऐसी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मीन्स स्टैंडर्ड होता है, विच कैन बी वेस्टोड. वेस्टोड्स क्या हो गया, वेस्टोड्स मीन्स एन ऑनर, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है अपॉन एनी पर्सन्स, किसी भी पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल्स. वन डज नॉट बिकम ए लीडर, एक आदमी जो है वो लीडर नहीं बन सकता है. वाई एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सीडेंट मीन्स एन इवेंट दैट हैपन्स बाय चांस. The responsibility of leadership comes on the shoulders of one has his background of experience. Responsibility होती है जिम्मेवारी, means having a duty to deal something. Of leadership comes on the shoulders हो गया उसके कंधों पर, means function करने का. Of one has his background होता है the circumstances of experience, practical contact and training coupled with vital personal qualities. Training means a specific goal. One has his background, vitals होता है full of energy. Qualities means standard. Because these all add to the professional competency of the leaders. ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल लीडर्स मीन्स द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग दैट वन हैज़ ए पर्टिकुलर फीलिंग. कॉम्पिटेंसी होती है एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली. वन थिंग इज ए सर्टन दैट देयर आर सर्टन क्वालिटीज. एक चीज़ तो साफ है कि देयर आर सर्टन क्वालिटीज. सर्टन होता है
able to firmly relied on to happens which distinguish a leader from other individuals around। तो उसकी क्वालिटीज़ जो हैं बाकियों से अलग होती हैं, जिससे कि वो बाकी इंडिविजुअल से जो उसके अराउंड हैं, अराउंड मीन एवरी साइड हैं, उनसे अलग दिखें। इन एनिशियंट टाइम इट वाज एडमिटेड दैट लीडर्स और वॉर। एनिशियंट टाइम्स होता है समथिंग दैट हैज़ लॉस्ट इट वेरी लॉन्ग टाइम। प्राचीन समय में जो चीज़ हो चुकी है उसको बोलते हैं हम एनिशियंट टाइम्स। इट वॉज एडमिटेड, एडमिटेड होता है कन्फेस, दैट लीडर्स और बॉर्न मीन्स, लीडर्स और बॉर्न मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हु हैज़ क्वालिटी दैट ए गुड लीडर। एग्जाम्पल, the son of a king will become a king after his death, whether he may have qualities or abilities to become a king or not, his worth in a royal family। The son of king means जो राजा का बेटा है, मीन किंग होता है one who inherits the position by right of birth। राजा का जो बेटा होता है विल बिकम ए किंग, उसके मरने के बाद, डेथ मीन्स द एंड ऑफ लाइफ, राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। वेदर ही मे हैव ए क्वालिटीज, चाहे उसमें वो स्टैंडर्ड हो या उसकी एबिलिटीज मीन्स उसमें टैलेंट है या ना है, टू बिकम ए किंग वो राजा बन जाता है। और नॉट हिज वर्थ इन ए रॉयल फैमिली, चाहे वो रॉयल फैमिली हो गया, इज द इमीडिएट फैमिली ऑफ ए किंग्स क्वीन, दैट इज कॉल्ड ए रॉयल फैमिली, वॉज सफिशेंट, सफिशेंट होता है इनफ फॉर बिकमिंग ए प्रिंस। तो उसके लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, एक राजा का बेटा है, उसके लिए वही काफ़ी है टू बिकमिंग ए प्रिंस। प्रिंस होता है राजकुमार बोलते हैं ऐसे, और ओरिजिनली सब्जेक्ट टू द किंग और एम्परर। वट नाउ ए डेज, मगर आज के समय में मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके की जो अप्रोप्रिएट थिंग्स है वो एप्लीकेबल नहीं होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एनी पर्सन बॉर्न इन एनी फैमिली, किसी भी इंसान का बेटा मीन्स पर्सन मीन्स ए ह्यूमन बीइंग, बॉर्न इन एनी फैमिली, किसी भी फैमिली में, फैमिली होता है ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज ए यूनिट। तो एक फैमिली में जो पैदा होता है कैन बिकम ए लीडर, वो लीडर बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज क्वालिटीज़, वो किस पर निर्भर करता है, उसकी एबिलिटीज़ पर, उसकी टैलेंट पर निर्भर करता है कि वो लीडर बन सकता है। देन नेक्स्ट इज द क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स स्टैंडर्ड। In fact, a personality of a leader is the combination of qualities। Personality, personality होता है quality that form individual distinctive character, that is called a personality, is a combination of qualities। combinations होता है joining of different parts, different अलग अलग किस्म की उसमें क्वालिटीज़ हो, मीन्स स्टैंडर्ड हो। वट जनरली द फॉलोइंग क्वालिटीज़ कैन बी डिवेल्प्ड थ्रू फिजिकल एजुकेशन और एज लिस्टेड बिलो। जनरली मीन्स यूजली, जो नीचे क्वालिटीज़ दी गई हैं वो किस तरीके से डेवलप होती हैं, डेवलप होता है टू मेक विजिबल थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। फर्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो है वो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। इंटेलिजेंट होता है शोइंग इंटेलिजेंसी स्पेशली ऑफ ए हाई लेवल। ए लीडर मस्ट हैव ए शार्प इंटेलेक्चुअल लेवल एंड डीप इंसाइट। शार्प होता है प्रोड्यूसिंग ए सडन, इंटेलेक्चुअल होता है इंक्लूडिंग ए क्रिटिकल थिंकिंग हो एंड रीडिंग, रिसर्च, राइटिंग एंड ह्यूमन सेल्फ रिफ्लेक्शंस। एंड डीप साइड गहराई से मीन्स फॉर डाउन, इनसाइट मीन्स क्या होता है अंडरस्टैंडिंग हो उसमें। ही शुड हैव फॉर साइटेडनेस,
फॉरसाइटेडनेस होता है वो दूर की सोचने वाला हो, हाई स्टैंडर्ड मीन अपीयर क्लियरली हो, इंटेलिजेंट लीडर्स हैव गुड थिंकिंग, तो इंटेलिजेंट मीन्स शोइंग द इंटेलिजेंसी, ऐसे लीडर्स जो हैं उनकी थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग होता है रीजनिंग अबाउट समथिंग, पावर होती है एबिलिटी टू डू समथिंग, एंड एंटीसिपेशंस होता है प्रेडिक्शंस। ही शुड टेक क्विक एंड राइट डिसीजन फॉर विच इंटेलिजेंसी इज रिक्वायर्ड। ही शुड टेक, उसको जल्दी से मीन्स मूविंग फास्ट, एंड राइट डिसीजन, राइट डिसीजन होता है व्हाट यू फील गुड एंड लुक गुड, जो दूसरों को भी ठीक लगे और खुद को भी ठीक लगे, ऐसा वो जो डिसीजन ले सके, फैसला ले सके। फॉर विच इंटेलिजेंसी इज रिक्वायर्ड, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एबिलिटी चाहिए टू एक्वायर। सेकेंड पॉइंट ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस होता है डिवोशन टू ड्यूटी। द लीडर मस्ट हैव ए क्वालिटी फ्रिम डिटर्मिनेशंस, फ्रिम होता है strongly felt, and determination means frames of purpose. He should remain determined through the learning process why for which he is leading. He should remain, remains होता है continue to exist, determined होता है having made a firm decision, सही फैसला लेने में उसको हो। द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस होता है स्किल्स थ्रू स्टडी, जो उसने स्किल जो है पढ़ के सीखे हों। विच इज लीडिंग, लीडिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीड द ग्रुप। ए डिटरमिन्ड लीडर नेवर लीव्स हिज टास्क हाफ वे, तो डिटरमिन्ड लीडर मीन्स हैविंग मेड ए फ्रिम डिसीजन लेने वाला लीडर जो होता है वो कभी भी किसी भी काम को बीच में हाफ पे मीन्स इनकम्प्लीट छोड़ के नहीं जाता है, मीन्स हाफ पे हो गया इन द मिडल वे में छोड़ के नहीं जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स होता है मॉडल्स, मीन इफ द कोच इज डिटरमाइंड टू इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग शेड्यूल only when he will able to implement the task in effective way for progressive learning of skills। अगर कोच जो है, कोच होता है द पर्सन हु trained the other person players, means who improve the performance of the individuals। to implement, implement होता है used for a particular purpose। द ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग होता है स्पेसिफिक गोल है, शेड्यूल हो गया ए प्लान कैरी आउट, ओनली देन ही विल एबल टू इम्प्लीमेंट, वो तभी ही उसको लागू कर सकता है। इम्प्लीमेंट होता है यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, और टास्क हो गया वर्क इन इफेक्टिव, इफेक्टिव वे होता है वर्क्स वेल एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, अच्छे तरीके से काम करना और उसका जो नतीजा जो है वो अच्छा है। फॉर प्रोग्रेसिव लर्निंग, प्रोग्रेसिव लर्निंग होता है एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल्स हो गया एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। थर्ड पॉइंट कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर। Cooperatives means involving mutual assistance and sympathetic behaviors. A person is one who motivated by compassions towards his followers। followers कौन होते हैं, जो उसको a person who supports and admires, that is called a followers। such attitude can win the hearts of the followers। इस तरीके का एटीट्यूड, एटीट्यूड्स होता है वे ऑफ थिंकिंग, अगर इस तरीके की वो सोच रखता है तो वो लोगों के दिलों को जीत सकता है, जो फॉलोअर्स हैं उसके, फॉलोअर्स में जो उसको उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। विच विल बी हेल्पफुल, वो उसके लिए मदद कर सकते हैं। अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल, डिज़ायर गोल्स मीन स्ट्रांगली विश्ड एम, जो उसका है उसको पाने के लिए वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। द लव एंड अफेक्शन, लव होता है फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शंस, अफेक्शन मीन्स ए जेंटल फीलिंग और लाइकिंग डिस्प्लेड बाय द लीडर। तो जे लव और अफेक्शन जो है डिस्प्लेड मीन शो करना पड़ेगा बाय द लीडर
इज ऑलवेज रिप्लाइड इन द सेम मैनर्स। अगर वो ऐसा लव और अफेक्शंस लोगों की तरफ शो करता है, दिखाता है, तो उसके उसका रिप्लाई जो है मीन्स आंसर भी जो उसको है वो उसको सेम मैनर्स में उसी तरीके से मिलेगा। सेम मैनर्स हो गया, सिमिलर वे में मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, गुड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता है लाइकेबल, इंटरेस्टिंग एंड प्लेजेंट। A leader must possess good personality which can influence the group effectively. अगर एक लीडर की जो पर्सनैलिटी है मीन्स लाइक एबल, इंटरेस्टिंग एंड प्लेजेंट, तो लोगों को वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द करेक्टर। वो लोगों, ऐसा करेक्टर जो लोगों पर असर डाल सकता है। Effectively means achieve a desired result. He should have charming personality. Charming means very attractive personality होनी चाहिए। Dynamic personality, dynamic होता है is a probably funny, loud and excitable personality. Leaves good impressions on the group. तो ऐसे जो चीज़ें, गुड होता है स्टैंडर्ड, और इम्प्रेशंस हो गया ए आइडिया, फीलिंग अबाउट समथिंग। तो ऐसा इम्प्रेशन जो है वो अपने ग्रुप मीन्स टू और मोर पीपल्स वर्क टूगेदर्स, दैट इज कॉल्ड ए ग्रुप। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स of the subject. Subject means thing that is being discussed. The leader should have vast knowledge, और लीडर्स को नॉलेज क्या होना, लीडर्स मीन्स हु लीड्स द वन ग्रुप, उसको एस वास्ट नॉलेज मीन ग्रेट नॉलेज, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और सही तरीके की सोच होनी चाहिए, मीन समथिंग दैट ट्रूली, अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्यू इन ए पर्टिकुलर वे of the subject, things that we discussed, जिस चीज़ पर भी वो अंडरस्टैंडिंग हो, मीन्स सब्जेक्ट हो गया, थिंक दैट डिस्कस्ड, जिसको वो आपस में डिस्कस कर सकें। द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑलवेज इम्प्रेसिस द फॉलोअर्स। गहराई वाला जो नॉलेज है मीन्स डीप नॉलेज, डीप इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑलवेज इम्प्रेसिस द फॉलोअर्स। तो इम्प्रेस होता है फील रिस्पेक्ट, एंड फॉलोअर्स हो गए ए पर्सन हु सपोर्ट एंड एडमायर्स। तो उन लोगों के ऊपर उसका जो है वो असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, मीन्स मॉडल के तौर पर क्या है, इफ ए कोच इज गोइंग टू ट्रेन हाई जंपर्स and is using old techniques like western roll, Caesar style, the group will not attend him with the interest. अगर कोच मीन्स जो ट्रेनिंग देने वाला है अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा है, हाई जंपर्स को ट्रेन कर रहा है, और पुरानी तरीके की टेक्निक्स जो हैं, ओल्ड मीन्स बिलोंगिंग टू पास्ट, एंड टेक्निक्स होता है कैरिंग आउट ए पर्टिकुलर टास्क लाइक ए वेस्टर्न रोल और सीजर स्टाइल, अगर वो उनको सिखाएगा, द ग्रुप विल नॉट अटेंड हिम विद द इंटरेस्ट। तो वो जो ग्रुप है, ग्रुप मीन्स टू और मोर प्लेयर्स जो अटेंड कर रहे हैं उसकी कोचिंग में, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या होगा, इफ़ द कोच इज़ गोइंग टू ट्रेंड, अगर कोच उनको ट्रेन करने जा रहा है, द हाई जंपर विद द लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक मीन्स न्यू टेक्निक्स, तो उसमें वो क्या करेंगे, लाइक फॉस्फरी फ्लॉप, द ट्रेनिंग्स विल ऑटोमेटिकली विल बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग। तो ऐसे में ये जो टेक्निक्स हैं, फॉस्फरी क्या हो गया, इज ए स्टाइल यूज्ड इन द एथलीट्स इवेंट ऑफ हाई जंप। तो वो जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं पर्सन अंडर गोइंग ए ट्रेनिंग फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, तो वो ऑटोमेटिकली होता है नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल्स, वॉलेंट्री तौर पर
इनवॉलेंट्री बी ए मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग, तो वो खुद ब खुद उसको सीखना शुरू कर देंगे, मोटिवेट्स हो जाएंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर उनमें पैदा हो जाएगी। इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड हो गया, इज द एबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फेस ऑफ चैलेंज एंड चेंज, दैट इज कॉल्ड ए इमोशनल बैलेंस्ड। लीडर हैज़ टू टीच डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो लीडर को क्या है, अलग डिफरेंट होते हैं, नॉट द सेम, अलग अलग लोगों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ उसको कांटेक्ट होता है, उनको सिखाना पड़ता है उसको। ही शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड, इसलिए उसको इमोशनली बैलेंस होगा, उसको उन पर गुस्सा नहीं करना होगा, खुश हो रहकर काम करना होगा। ही शुड हैव टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है विलिंगनेस टू टॉलरेट, लोगों का गुस्सा और खुशी भी सहन करनी होगी। एज वेल एज टेम्परामेंट, टेम्परामेंट हो गया इमोशनल एक्साइटमेंट। इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स मीन्स ए फीचर्स ऑफ फीलिंग्स लाइक फियर, फियर होता है अनप्लेजेंट इमोशंस कॉज्ड बाय द थ्रेट ऑफ डेंजर, अगर वहाँ पर खतरा भी है तब भी उसको वो सहना होगा। एंगर मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर्स, लोगों को वो फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर्स वो भी सहनी पड़ेगी। जेलिसीज मीन्स ए फीलिंग ऑफ जेलसी। एंड एनेक्सटी, एनेक्सटी मीन्स फीलिंग ऑफ वरी, प्रेजेंट इन लीडर ऑलवेज, ये सब कुछ लीडर के में प्रेजेंट होता है। एंड ऑलवेज हाइंडर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन टास्क, और ये सभी चीज़ें उसको छुपा कर एक कॉमन वर्क के लिए उसका इस्तेमाल करना होगा। दिस इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑफन कंज्यूम टू मच ऑफ मेंटल एनर्जी, अगर ये फियर, एंगर, जेलसीज एंड एनेक्सटी ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मीन्स इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्शंस पैदा करते हैं, और कंज्यूम्ड लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत सारा समय जो है वो कंज्यूम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑफ मेंटल एनर्जी, उसके साथ साथ दिमागी तौर पर उसकी शक्ति डिस्ट्रॉय होती है, विच कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क, जिसका इस्तेमाल उसको एक अच्छे काम के लिए करना होगा, मेक एक्टिविटी में करना होगा, तो वो उसकी एनर्जी जो है वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मीन्स truthful and sincere. Honest leader is always liked by a group. Liked होता है wish, तो truthful and sincere leader जो है हमेशा always लोग जो हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। Honesty was good impressions on the group. Honesty means truthful and sincere जो है impressions होता है, an idea, feeling always, all times, effective on the group. Honest leader will always utilize the material and funds for better learning. तो जो एक honest leader होता है मीन्स ट्रूथ और सिंसियरफुल लीडर्स होता है, वो हमेशा क्या करता है, यूटिलाइज मीन इफेक्टिव यूज करता है मटेरियल का, कैन बी मेड, एंड फंड्स, फंड्स मीन्स मनी मेड available for a particular purpose. Better learning of the group, better हो गया अच्छा, study of good educations of the group which is always welcomed by the group, तो जिसका वो ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ 2 or 3 peoples or more than 3 peoples with friendly natures, that is called a welcomed. Social quality, social means the way of understanding the society. A leader should have a social qualities, तो लीडर के पास क्या होना चाहिए, सोशल क्वालिटीज होनी चाहिए, मीन्स हेल्प कर सकता हो, कोऑपरेट कर सकता हो लोगों के साथ, सो दैट ही कैन इंटरेक्ट विद द ग्रुप इफेक्टिवली, जिससे कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सके। इंटरेक्ट होता है कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेट बोलते हैं। इफेक्टिवली टू अचीव ए डिज़ायरेबल रिजल्ट,
पा सके। A specialized leader has always sacrificing instinct for the common good. Socialized लीडर कौन सा हो गया? जो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचता हो। He has always sacrifice, वो हमेशा सोसाइटी के कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। गिव अप। इंस्टेंट मीन फिल्ड विद क्वालिटी, इस तरीके की उसमें क्वालिटीज होती हैं। फॉर द कॉमन गुड, कॉमन हो गया शेयर्ड बाय पीपल्स, गुड हो गया हाई स्टैंडर्ड। द सोशल क्वालिटी डिस्प्लेड बाय द लीडर इज ऑलवेज लाइक्ड एंड ओमिटेड बाय द ग्रुप। तो सोशल क्वालिटीज जो हैं शो करता है लीडर, तो हमेशा उसको सोसाइटी जो है वो लाइक करती है। एंड omitted बाय द ग्रुप, emitted होता है प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज बाय द ग्रुप। Sincerity is the quality of honest, true and real is called sincerity. A good leader must do his work sincerely. तो एक अच्छा लीडर जो है हमेशा जो है वो सिंसियर होता है, आप आज्ञाकारी होता है लोगों का। He should be sincere toward his work and followers. वो हमेशा सिंसियर टूवर्ड हिज वर्क, अपने काम में और अपने फॉलोअर्स के लिए सिंसियरिटी रखता है, मीन्स हॉनेस्टी रखता है। रियलाइज द सिंसियरिटी कम्स फ्रॉम द हार्ट, और ये जो हॉनेस्टी जो है रियलाइज होता है बिकम फुली अवेयर। दैट सिंसियरिटी कम्स फ्रॉम द हार्ट, हार्ट होता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये दिल से जो चीज़ जो है वो निकलती हो तो उसे हम रियलाइज करता है। वट एवर यू से और डू, अब कुछ भी कहते हैं, से मीन्स अटर वर्ड्स, और डू कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू मीन टू से और डू इट। तो रियली हो गया एक्चुअल फैक्ट में आप महत्वपूर्ण, वैल्यू इम्पॉर्टेंट होता है। वैल्यू ये है कि आप क्या कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी हो गया बीइंग ए रेगुलर। रेगुलरिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। रेगुलरिटी इज द क्वालिटी मीन्स बीइंग ए रेगुलर अगर हैं, ऑफ बीइंग स्टेबल, स्टेबल होता है सेटल्ड, प्रेडिक्टेबल होता है डिक्लेयर्ड इन एडवांस, जिसको पहले ही आप डिक्लेयर कर चुके हैं। इफ़ यू मीट रेगुलर योर फॉलोअर्स, अगर आप लगातार अपने फॉलोअर्स के साथ, फॉलोअर्स मीन्स वन इन द सर्विस ऑफ अनदर, उनके साथ मेल जोल रखते हैं, माइट वर्क आउट एवरी डे, हर दिन उसके साथ काम करते हैं। इफ़ यू ब्रेक डाउन, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, मीन्स शैटरिंग हो जाती है। विद रेगुलरिटी, अगर आप उनके साथ लगातार नहीं मिल पाते हैं, देन यू आर प्रॉब्ली यूज टू डिसलाइक बाय द फॉलोअर्स, तब आपको वो लोग जो हैं नापसंद करना शुरू कर देंगे। पंचुअलिटी मीन बीइंग ऑन टाइम। Punctuality helps in building the integrity of a leader. Punctuality building means built for performed, permanent. Integrity होता है the quality of being honest and having a strong principles. तो honest और strong principles जो हैं वो लीडर के उसको पंक्चुअल बनाने में मदद कर सकते हैं। Being punctual means respecting the value of time. अगर लीडर खुद पंक्चुअल है तो वो समय की रिस्पेक्ट कर रहा है, मीन्स उसको रिगॉर्ड कर रहे हैं। पंक्चुअलिटी मोटिवेट्स अ लीडर टू परफॉर्म ए टास्क इन ए टाइमली मैनर्स। तो पंक्चुअलिटी क्या करती है, उसको मोटिवेट्स करती है, मीन्स मोटिवेट्स मीन रीजन फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने में। द लीडर टू परफॉर्म ए टास्क टाइमली मैनर पर वो काम जो है वो परफॉर्म कर सके। टाइमली मैनर्स हो गया डूइंग समथिंग एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड ए टाइमली मैनर्स।
राइट जजमेंट, राइट होता है morally good. Judgment means ability to make considered decision, किसी भी चीज का सही फैसला लेने. A leader must have a unbiased attitude. Unbiased होता है impartial. लीडर को कभी भी अनबाइस्ड एटीट्यूड हो गया, फीलिंग अबाउट समथिंग, इम्पार्शल्स, विच कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉलोअर्स. किसी का भी साथ ने लेकर सही फैसला अगर वो देता है तो उससे क्या क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉलोअर्स. कॉन्फिडेंस होता है द फीलिंग ऑफ द पीपल्स, फॉलोअर्स वो क्या होता है, वो जीत लेता है, उनको कॉन्फिडेंस जीत लेता है, फीलिंग उनकी जीत लेता है. वाइस्ड एटीट्यूड ऑलवेज क्रिएटेड rivalry within the group which can shatter the group. Biased attitude mean against someone, किसी के against हो जाना. Created means bring into existence. Rivalry means losing competitive relationships. तो दुश्मनी इस तरीके से अगर वो पार्शली जो काम करता है तो उससे लोग आपस में ग्रुप में क्या हो सकती है, एक दूसरे के लोग खिलाफ हो सकते हैं. विच कैन शैटर द ग्रुप, जिससे कि ग्रुप जो है वो टूट सकता है. शैटर होता है ब्रेक हो जाना. एग्जाम्पल, if an umpires or referee is acting as the leader of the game and he displays partial attitude to one particular team. umpires क्या होता है, umpires होता है an officials who watches a game closely to enforce the rules and regulations, that is called a umpire or referee. is acting as a leader, उस वक्त वो क्या है, लीडर हैं. of the games एंड ही डिस्प्लेस, वो शो कर रहे हैं पार्शल एटीट्यूड्स, वो किसी भी टीम का साथ नहीं दे रहे हैं. पार्शल एटीट्यूड टू वन, अगर वो किसी एक टीम का साथ देते हैं, एटीट्यूड टू वन पर्टिकुलर टीम, किसी एक खास टीम का साथ देता है. दिस एटीट्यूड हैज़ नेवर लाइक्ड बाय द स्पेक्टेटर्स. तो इस तरीके का एटीट्यूड्स जो है, इस तरीके की जो फीलिंग जो है वो लोग पसंद नहीं करते हैं. स्पेक्टेटर्स होते हैं ए ग्रुप ऑफ peoples who watch the match in the stadiums as well as other teams. और उसके अलावा जो दूसरी टीम्स हैं, टीम्स क्या हो गई, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स forming one side in a competitive game or sport. नेक्स्ट पॉइंट है courteous. courteous, a good leader should be bold by natures. तो courteous होता है brave, bold होता है fearless. तो लीडर जो है हमेशा जो है वो बोल्ड होना चाहिए, fearless होना चाहिए. by nature, नेचर होती है काइंड और क्लॉस यूजली. विच इज असेंशियल टू रूल, जिससे कि असेंशियल होता है इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, टू रूल ओवर द ग्रुप. तो ये चीज़ें जो हैं उसको अगर ग्रुप के ऊपर रूल करना है, मीन्स गवर्न करना है, तो ये चीज़ें उसके पास जो हैं वो होनी चाहिए. ही शुड अथॉरिटेटिव इन नेचर्स. अथॉरिटेटिव होता है होली इनवॉलेंट्री. in nature, natures mean kind, which can direct the group effectively toward the attainment of the goals. तो इस तरीके की अगर उसमें अथॉरिटेटिव मीन्स इनवॉलेंट्री तौर पर उसकी नेचर होती है, विच कैन डायरेक्ट द ग्रुप, वो ग्रुप को डायरेक्ट कर सकता है, गिव द डायरेक्शंस, मूव कर सकता है. इफेक्टिवली मीन्स इन इफेक्टिव मैनर्स, टूवर्ड्स गोल की तरफ, टू अटेनमेंट, अटेनमेंट होता है टू ऑब्टेन समथिंग, गोल मीन्स एम, उस गोल को वो हासिल कर सकता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स कॉन्फिडेंस इज वन सेल्फ एंड इन वंस पावर्स एंड एबिलिटीज इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ ए लीडर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कैन इनकलकेट कॉन्फिडेंस अमंग हिज ग्रुप्स. अगर लीडर में खुद पर
आत्मविश्वास है। ही कैन इनकलकेट कॉन्फिडेंस। इनकलकेट कॉन्फिडेंस होता है टू टीच एंड इम्प्रेस फीलिंग वट एवर अमंग द ग्रुप। वो ग्रुप में कॉन्फिडेंट जो है वो टीच एंड इम्प्रेस कर सकता है उनकी ग्रुप की फीलिंग्स को। वेयर एवर इट इज़ नीडिड। वेयर एवर मीन वट एवर प्लेस, जहाँ किसी भी जगह पर उसको ज़रूरत है इस चीज़ की। यू कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड इन वंस विदाउट बीइंग कुकी एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। कुकीज हो गया कॉन्फिडेंट इन ए बोल्ड और चिकी वे। एरोगेंट हो गया सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, सिर्फ वो अपनी इम्पोर्टेंस जानता हो। और ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होता है एक्सेसफुली कॉन्फिडेंट। डिसीजन, डिसीजन तो ऐसे बोलते हैं हम उसको फैसला। डिसीजंस हो गया एक कंक्लूजन, डिसाइडिंग समथिंग, किसी चीज का फैसला करने को बोलते हैं। द मेन वर्क ऑफ लीडर इज गिविंग करेक्ट जजमेंट। तो मेन काम, मेन हो गया इंपॉर्टेंस क्या है उस काम की, तो लीडर का काम है कि सही जजमेंट देना। करेक्ट जजमेंट मीन्स फॉर्म एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन, एंड टेकिंग राइट डिसीजन, और सही फैसला लेना। राइट डिसीजन हो गया यू टेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू फील गुड एंड लुक गुड, दैट इज कॉल्ड ए right decision. The action or process of deciding something, जब भी आप कोई फैसला कर रहे हैं, और रिसॉल्विंग ए मैटर्स, जब कोई किसी डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं, मीन्स उसको डिसाइड कर रहे हैं, रिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसमें सही फैसला लेना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।